Hare Ram, Vaheguru. Knowledge alone is light. Ignorance is suffering. So knowledge can be taught. Love cannot be taught. Spirituality cannot be taught. Love, spirituality, that's to be reached through knowledge. The goal is love, spirituality. But you can reach it through knowledge. Knowledge is effort, wanting to learn, wanting to digest, wanting to experience. Jnatum, drashtum, tatven praveshtum. So whatever I can talk to you is knowledge. But what you experience is digested knowledge. And when you finally go beyond experiences, that's where love begins. Let me tell you what's the difference between psychology and spirituality. So it's knowledge, What is psychology? What is spirituality? Now, the very word psyche means spirit. The Greek word psyche means spirit. So actually it means spirituality only. But no, there's a distinct difference. Because be it Freud, be it Carl Jung, they couldn't reach spirituality. They talked about the mind only, how to quieten the mind, how to live a meaningful life. Mind being at rest. Not absolute rest, that's not possible through psychology. Neither could Carl Jung himself reach that, nor could Freud reach that, because that's the subject of, be it Vedavyasa or be it Adi Shankara. That's not psychology, that's going beyond the mind. But even our holistic scripture like darshan, yoga darshan, will tell you yoga chitta vritti nirodha. The first or second sutra tells you to go beyond the mind is spirituality. Yoga is to go beyond the mind. But the whole book, the whole treatise, scripture, is all about describing the mind. What is mind? The whole of the scripture, this little book, is description of the mind only. So when somebody is talking about the mind only, that means this book is psychology. Though from the very beginning he has said to go beyond the mind is spirituality. But how to go beyond the mind? First understand what is mind. Then alone there's a possibility that you'll be able to go beyond the mind. Religion is gross, very gross, sthul hai. You generally waste time in religion only. मंदिर जाना, मस्जिद जाना, अल्लाह ही सब कुछ है या श्री कृष्ण ही सब कुछ है. It's just a भेड़ चाल. You're born in a religion, so you're told that everything is Krishna. But you're born in another religion, Allah is
ओ अकबर. So, and you keep debating and fighting with each other. अल्लाह बड़ा है कि कृष्ण, ना तो आपने कृष्ण देखा, ना तो उन्होंने अल्लाह देखा. But you are unnecessarily making, this another reason for your conflict within you. Perhaps it's a distraction. अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चलो अल्लाह और कृष्णा की लड़ाई कराते रहेंगे तो मे बी सम रेस्ट तो मिलेगा, कोई एक फोकस तो मिलेगा कि कौन बड़ा है. इसी डिस्कशन में पड़े रहो कि नानक बड़ा कि बुद्ध बड़ा. वेल, एक टारगेट तो मिल गया. नथिंग मोर देन दैट. रिलीजन इज नथिंग मोर देन दैट. Divisive. Psychology is more important. As a doctor, let me tell you, body is made up of what? Digestive system, nervous system, respiratory system, cardiovascular system. This is gross. Flesh hai, bones hai, blood hai, lymph hai. This is gross. But इसके अंदर हार्ट है, उसकी 4 चेम्बर्स हैं, कैसे पंप करता है. नो, दिस इज नॉट साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज कि ये दिमाग, ये ब्रेन है, दिस इज ऑल ग्रॉस. ये हमारे मूड्स हैं, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, वो कहाँ रेस्ट करती है अंदर. वेयर इज इट रेस्टिंग? नो डॉक्टर नोज वेयर इज इट रेस्टिंग. यस, वी नो ब्रेन के पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स है, छिलका इंटेलेक्चुअली बातें करता है सब कुछ. उसके अंदर हाइपोथैलेमस, एमिगडाला वगैरह है जहाँ इमोशंस बनती हैं. वेल, बट ये इमोशंस, ये माइंड है क्या? सो दिस इज व्हाट दिस एंटायर बुक इज ऑल अबाउट. So when I had darshans of my guru, I was kind of levitated. Levitated means elevated. Levitated, elevated. तो पाँव जमीन पे नहीं लगते. I mean, you become ethereal. You don't stay earthly, ethereal. You start floating in the air. पाँव जमीन पे नहीं लगते. एक वो पाकीज़ा में एक डायलॉग बहुत ब्यूटीफुल था. माफ कर दीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में आ गया, आपके पाँव देखे, बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा. ब्यूटीफुल. ये पाँव जमीन पे चलने के लिए नहीं बने हैं, ये पाँव उड़ने के लिए बने हैं. ये पाँव बहुत सुंदर हैं. We are not earthly beings. We are ethereal beings. Ethereal. हम मरने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम अमृत हैं. Now this अमृत तत्व is spirituality. Mind cannot be अमृत. Mind ने तो मरना ही है. मगर psychologists can at best tell you कि mind को कैसे stable करना. There was some patient talking to me from Canada, telling me that in Canada, I was not aware, ignorance. In Canada, doctor-assisted suicide is permissible. So he said, I have registered for doctor-assisted suicide. I have registered, so I'm in the queue. Maybe they are also considering कि कब help करनी है, कि आपको हम help कर देंगे मरने के लिए. So he rang me up and he says, can you help me? So, help me means get out of that situation, although I'm already ready to die, but can you avoid that? Well, because he had some cancer issues. Well, it's okay. So, psychology is to bring about semblance of some comfort inside you. Religion से नहीं हो सकता, but पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं हम religion में. वो तो knowledge से ही हो सकता है ना. Understand the mind. Understand the mind. And finally, if you are blessed, blessed by whom? Blessed by your guru. Who is guru? You yourself. You yourself, not somebody outside you. सब तो बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी. कौन है सतगुरु नानक? आप ही हैं.
कौन है श्री कृष्णा? आप ही हैं। मुझ पे बहुत कृपा हो गई है मेरे गुरु की। कौन है गुरु? मैं ही हूं। मेरी कृपा मुझ पे हो गई और मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूं। ये आदमी तो इंटेलेक्ट है, ये तो छिलका है, कॉर्टेक्स। जो बातें कर रहा हूं, दैट्स कॉर्टेक्स। मगर जो इसके अंदर छुपा हुआ रियलिटी है, वो अमृत है। वो सबके अंदर ही, वो प्रेम है। वो प्रेम है। इनिशियली बिगिंस लाइक फैसिनेशन विद द गुरु, and then gradually and gradually and gradually and gradually it becomes you, which is love. फिर आप में देखिए इंग्लिश वर्ड्स, मैं बहुत साल कोशिश करता रहा हूँ इस इंग्लिश वर्ड को समझने की। आ, जैसे कि शुरू में बहुत कोशिश की समझने की कि बुद्धा बड़े हैं कि नानक बड़े हैं कि कृष्णा बड़े हैं। वे बड़े हैं, एक बग इन द हेड है, उनमें किसी में कोई अंतर नहीं है। जो भी स्पिरिट अपनी एक्सपीरियंस कर लिया जिसने, बस वो तो अंतरों से खत्म हो गया ना, अंतराय अभावश्च। सो उसके लिए कोई डिस्टेंसेस डिफरेंसेस नहीं रह गए। सो अनदर डिफरेंस, ट्राई थिंक ऑफ इट, लवर और बिलवड में क्या अंतर है? जो प्यार करता है और जिसको प्यार किया जा रहा है, लवर बिलवड, तो दोनों एक ही तो हैं। ये भी तो लवर ही है, तभी तो इसका ये बिलवड बना, और ये भी तो लवर है, तभी तो इसका कोई बिलवड है। दोनों में कोई अंतर है नहीं। और लव में भी कोई अंतर नहीं। लव, लवर, बिलवड, दे आर ऑल थ्री वन। जब प्रेम हो जाता है, तब आपको मालूम नहीं होता कि मैं उसको प्रेम करता हूं कि वो मुझे प्रेम करता है, कि या मैं प्रेम ही हूं और कुछ हूं ही नहीं, कोई पर्सन नहीं हूं। आई एम जस्ट लव। सो दैट इज द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट बिगिंस मच लेटर। पहले तो साइकोलॉजी के मन को तो शांत करें, और मन शांत होने के लिए बोला गया है ईश्वर प्रणिधान। एक बिलवड होना चाहिए जिसके अंदर यू शुड वांट टू dissolve, to finish your own identity and become like him. So I was sharp, maybe intellectually, the day I started levitating and elevated feeling, from the day one, I realized that this subject of spirituality is a ploy. ये तो एक तरीका है आपको मार देने का, कि फिर आप ना रह जाएंगे। सो बट मैं तो मरने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू सफर एनी मोर। ऐसे मरने के लिए भी तैयार हूँ। वैसे भी कनाडा जाना पड़ेगा टू गेट रजिस्टर्ड फॉर गॉड, फॉर डॉक्टर असिस्टेड सुइसाइड। तो मैं यहीं पे ही तो मरने के लिए तैयार ही हूँ। तो ठीक है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हिप्नोटाइज्ड एंड स्टे फ्लोटिंग। ये पाँव जमीन पे रखने के लिए नहीं है। आई वॉन्टेड टू फ्लाई। सो दैट फ्लाइंग इज स्पिरिचुअलिटी, is going beyond the mind. So the mind was on the day one ready that I want to die. The mind, not the body, mind was ready to die. To get dissolved completely into the beloved. कि मैं तो अभी ये सफरिंग आदमी रहना ही नहीं चाहता। I want to be enlightened, lighted, elevated, levitated. सो तो बस वो तो स्पिरिचुअलिटी पहले दिन ही पहुंच गई ना। सो ईश्वर प्रणिधान क्या होता है? ईश्वर क्या होता है? ईश्वर की डेफिनेशन क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरा, मृष्ट, पुरुष विशेषा ईश्वर। ईश्वर क्या होता है? जिसको कोई माइंड वाइंड से परे है, जो जो माइंड तो बस बातें बातें करने के लिए है उसके पास, मगर ही इज बियॉन्ड द माइंड।
he is not robotic. He is equally warm, compassionate, efficient, beneficent, but he is beyond all this. So spirituality is beyond the mind, and psychology is understanding of the mind. कि mind बना कैसे, mind का structure क्या है. Just like I told you, the body is made up of these systems: nervous system, circulatory system, digestive system, respiratory system. Similarly, mind कैसे बना है, structure क्या है mind. Mind is made up of प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति. ये 5 चीजों का बना हुआ है. स्ट्रक्चर क्या है उसका. सारा दिन कोई ना कोई प्रूफ्स ढूंढता रहता है. प्रमाण, विपर्य, कुछ ना कुछ डिस्टॉर्टेड इमेजिनेशंस में फंसा रहता है. और विकल्प, इमेजिन, सोचता रहता है कुछ ना कुछ. इमेजिन हुआ कुछ नहीं है कि कल बूढ़ा हो जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा, बच्चे मेरे साथ होंगे कि नहीं होंगे. और या पास्ट सोचेगा कि कल मेरे जो बच्चे थे इतना प्यार किया था, उसने सबने छोड़ दिया मुझे. ऐसे सोचता ही रहेगा कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस. और फिर थक जाएगा. उसको बोलते हैं निद्रा. थक जाएगा, सोना भी तो पड़ेगा. थक जाएगा सारा दिन ये काम करता हो, और फिर अगले दिन से फिर शुरू कर देगा वही काम. ये इसका स्ट्रक्चर है माइंड का. और इसके सिम्टम्स क्या है माइंड के. मतलब माइंड इज नॉट योर रियलिटी, माइंड इज व्हाट यू हैव बिकम. सो इसके सिम्टम्स क्या है. व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व. सो ये सब वर्ड्स हैं संस्कृत के, बट इट मीन्स कि कभी बीमार हो जाना, कभी बैक एक हो जाना, कभी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाना, कभी बूढ़े हो जाना. ये सब उसका होता रहेगा सारा दिन. माइंड को सारा दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा. कभी माइंड बुझ जाएगा, कभी खिल जाएगा, कभी कुछ खेलना चाहेगा, कभी खुश, कभी कुछ जोक्स सुनेगा, कभी गमगीन गाने सुनेगा, चाहेगा मैं बोर होना चाहता हूँ. दिस इज व्हाट द सिम्टम्स ऑफ माइंड आर. और साथ में दुख भी होगा, दौर्मनस्य भी होगा, श्वास प्रश्वास, अंग में जैत्व भी होगा. ये सब माइंड के फैसेट्स हैं. सो माइंड को अच्छी तरह से समझ लेना, और फिर माइंड को एक ही तत्व अभ्यासा. एक तो पहले तो अगर ईश्वर में लगा दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. नहीं ईश्वर के साथ लग रहा, इमेजिन नहीं कर पा रहे श्री कृष्ण क्या है, कोई बात नहीं. वीतराग विषयम वाचित्तम. वीतराग, किसी वैरागी, किसी योगी के साथ मन लगा लो. या एक तत्व अभ्यासा, या ऐसे ही कोई फ्लेम व्लेम सामने रख लो, फोटो रख लो, उसको देखते रहा करो. देखो 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 देखो, फिर आंखें बंद करके अंदर देखो, फिर बाहर खुली देखो, फिर अंदर रखो. तो ये धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब है. सो माइंड इस इन तरीकों से थोड़ा स्टेबल हो जाएगा. स्टेबल माइंड को क्या बोलते हैं. स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी माइंड. जब वो हेल्दी माइंड हो जाएगा, सचमुच क्वाइटन हो जाएगा, तो उसके अंदर शक्तियां आ जाएंगी. परमाणु महत्वांत अस्य वशीकारा. वो कुछ भी सब्जेक्ट समझने के काबिल हो जाएगा. माइंड क्यों किसी का बिल्कुल ही डल है, किसी का बड़ा शार्प है. शार्प मीन्स उसको एक चीज को देखना आ गया. ग्रहित्री, ग्रहण, ग्रहेशु, तदाकार. तदाकार हो सकता है वो, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकता है जब उसको फोकस मिल जाएगा. बट एनीवे, दिस इज ऑल अप टू फ्रॉइड एंड कार्ल यूंग, दीज फादर्स ऑफ साइकोलॉजी, कि माइंड को हेल्दी कैसे करना. मगर फाइनली स्पिरिचुअलिटी इज नॉट माइंड. स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग बियॉन्ड द माइंड. स्पिरिचुअलिटी इज शिव शक्ति आप उपाय के, करता आप पे हुक्म वर्ताए.
अपने शिव शक्ति स्वरूप। कोई शिव तो पहले बाहर होगा, तभी तो शक्ति जागेगी। शक्ति ही तो सोई थी, शक्ति सो गई है, इसलिए हम अबला बन गए। अबला वुमेन को बोलते हैं, मगर हम सब अबला ही हैं। आदमी के कपड़े डाले हुए हैं, मगर हैं हम अबला ही। क्योंकि अर्जुन को भी तो श्री कृष्ण ने अबला ही बोला ना, कि ये क्या बन गए हो तुम, क्लैब्यम महास्मगम पार्थ नई तत्वै उपपद्यते। तुम पुरुष हो, तुम ये अबला कैसे बन गए? तो पुरुष का मतलब ये वाला आदमी नहीं, पुरुष हो, सचमुच का पुरुष शिवा। शिवा इज द ओनली पुरुष, गुरु इज द ओनली पुरुष। बाकी तो सब कमजोर ही कमजोर है। अबला मीन्स कमजोर हैं, अपने आप को ऐसे आदमी आदमी बताते हैं और तलवार वलवार लेके घूमते हैं। दिस इज अबला ओनली, trying to prove that I am a man. Who needs to prove? The one who is actually not. The one who is actually पुरुषा, वो तो शक्ति और पुरुष में कोई अंतर नहीं समझता। The one who is truly Krishna, वो तो राधा के कपड़े डाल के घूमता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। He doesn't have to show that I'm a man. He is a man because he is now complete. The one who has the bride is the bridegroom, Jesus would say. अभी उसको वो कंप्लीट है अपने अंदर, उसको कुछ नहीं चाहिए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। माइंड को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, माइंड को चाहिए। और माइंड को अगर ईश्वर मिल जाए, कृष्णा से प्रेम हो जाए या नानक से प्रेम हो जाए, तो धीरे 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 नानक में और माइंड में अंतर कहाँ रह जाएगा? माइंड मर चुका होगा। जब माइंड मर जाएगा तो फिर तो उसको स्पिरिचुअलिटी हो गई। अब कोई माइंड नहीं रह गया। Now you become Adi Shankar. Now you become Osho. There's no difference. Anybody who transcends mind is an Osho. It's a Satya Sai Baba. Born, Satya Sai Baba is born beyond the mind. वो छोटे बच्चे भी थे तब भी, he was not the mind. He was never the mind. So this subject called spirituality is is only available in this geographic land called Bharat. Nobody else could touch this. Yes, Confucius थे, फिर कैंट थे, they could just about think that ये जो माइंड के को समझने की कोशिश कर रहा है, मैं वो हूँ, मैं माइंड नहीं। Because after all, if you can see a thing, logically you are not that thing, you know. If you can hold a thing, then you are not a thing. If I can hold this phone in my hand and I can see it, that means I am not the phone. Similarly, if you can observe your thoughts, that means simply you are not the thoughts. You are not the thoughts. If you can see your mind, then you are not the mind. माइंड को उछल कूद करने दो, बट आप तो नहीं होना फिर माइंड। इस बॉडी को हिलने दो, आप तो नहीं होना बॉडी। इस माइंड को, इस बॉडी को सांस लेने दो अंदर बाहर, आप तो नहीं होना। इस माइंड को डरने दो कि मैं मर ना जाऊं, कहीं सांस ना रुक जाए, जो डर लेने दो, आप तो नहीं होना माइंड। क्योंकि एनीथिंग विच यू कैन सी कैन नॉट बी यू। नो, बट दिस knowledge which I am giving you is psychology only. The day you will be able to transcend the mind, you would no more say that I have transcended. You would be you. The one who says is the mind only. So, understanding of the mind is psychology. Isn't it necessary to understand the mind? तभी तो आप स्टेबल हो सकते हो।
नहीं तो आप इस बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करते रहोगे, ये बॉडी ने कैसे स्टेबल हो सकना है? बॉडी तो अंग में जैत्व श्वास प्रश्वास से बनी है। ये तो सांस अंदर बाहर जाएंगे ही जाएंगे, इसको स्टेबल कर ही नहीं सकते। इसको हिलने मिलने दो। आप तो नहीं हो ना ये बॉडी। और माइंड को कभी खुश हो जाने दो, कभी दुखी हो जाने दो। आप तो नहीं हो ना माइंड। मगर क्या करें, जो कुछ भी मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये तो माइंड ही बता रहा है माइंड को। मगर आप तो हो ही नहीं ये सब। आप तो साइलेंस हो जो इसके पीछे करंट बह रहा है। यू आर द करंट विच इज एवर फ्लोइंग, एवर फ्लोइंग। आप वो प्राण शक्ति हो, प्राण शक्ति हो। प्राण शक्ति सांसों को नहीं बोलते। सांसों के सांस में जो हूं, तो मैं हूं। सांसों के पीछे क्या एनर्जी है, कैसे सांस चल रहे हैं, मैं कैसे बातें कर पा रहा हूं, इसके पीछे कुछ है ना, तभी तो ये बातें कर पा रहा हूं। इंटेलेक्ट कैसे काम कर रही है, उसके पीछे जो रियलिटी है वो आप प्राण शक्ति हो। वो प्रणव है, वो प्रणाम है। हाथ जोड़ देना तो एक रिचुअल है, प्रणाम। मगर जब अंदर से प्रणाम हो जाएगा तो आप में और प्रणव में कोई अंतर न रह जाएगा। जब हाथ सचमुच जुड़ जाएंगे, इट विल बिगिन विथ फैसिनेशन। इट विल बिगिन एज फैसिनेशन। विद फैसिनेशन इज डिफरेंट। इट बिगिन्स एज फैसिनेशन एंड देन द वाहो, वाह हे गुरु, वाह हे गुरु। और कभी धीरे धीरे तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जो गुरमुख है उसने अकथ कहानी कैसे जानी? तुन में ध्यान, तुन नाद, नाम, उसमें तुन लग गई, धुन लग जानी, धुन ध्यान लग जाना। वो ध्यान समाधि का रूप ले लेना, और वो समाधि थम जानी, निर्विचार निर्वितर्क हो जानी, निर्बीज पहुंच जानी। फिर पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसव कैवल्य। फिर आप हो जाएंगे। आप ही शिव शक्ति हैं। ये स्पिरिचुअलिटी। हरे राम।